most buildings, gardens and a museum. It has most beautiful building of the world. The Taj Mahal is also one of the world's most iconic monuments. Millions of tourists visited each year the Taj Mahal. Its beauty is watching in the seven wonders of the world. I like the Taj Mahal very much. Thank you. हाँ हाँ कर रहे हैं सर इंटरव्यू सर। बताओ बेटा किस चीज़ का मॉडल बनाया आपने? Good afternoon, sir. My name is Sartaj. I read in 4th class. This is the model of smart city. There is the technology in the smart city. There is the modern airport, a modern English medium school, a big TV station, many government offices with full facilities, a multi-specialty hospital, a multi-storied building. There is the traffic lights, facilities spot on the road. There are many means of transport. There is the parking place in the smart city. There is greenery. Its beauty is worth seeing. The smart city is neat and clean. Thank you. बताओ बेटा क्या बनाया आपने? बताओ इसके बारे में। Controlling climate by managing the effect of sun, rain and wind. The trees are very efficient in balancing the ecosystem in the nature. Trees give us life. It gives us fresh air to breathe and life a healthy life. बहुत बढ़िया बेटा। My name is Ishita. I study in 5th class. My topic is type of shapes. First, triangle. Parameter of triangle: side plus side plus side. Area of triangle: 1/2 multiply height multiply breadth. Next, squares. Parameter of square: side plus side plus side plus multiply side. Next, rectangle. Parameter: 2 multiply length plus breadth. Area of rectangle: length multiply breadth. Circle. Area of circle: pi r square. हाँ बताओ। A volcano is an opening in the earth crust through which lava, volcanic ash and gases escape. Volcanic eruptions are partly driven by a pressure from dissolved gas, much as escaping gas forces the cork out of a bottle of compass. Thank you. From the sun in at the atmosphere. The greenhouse gases absorb and emit infrared radiation from the sun, warming the Earth's surface lower atmosphere. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Ansul. I read in 5th class. My topic is traffic rule. सर ये ऑफिस है सर, ये हाउस है सर, ये बैंक है सर। स्टॉप का मतलब रुकना सर, वेट का मतलब सर रुक चलने की तैयारी करना सर, गो का मतलब चलना।
बताइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. My name is Rajat. My name is Jaskaran. We are from class 8. Our model is on air and water pollution. Sir, air pollution. एयर पोल्यूशन सर, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है सर, फैक्ट्री में जो भी काम होता है सर, उससे जो भी पोल्यूशन होता है सर, वो हवा में जाके मिक्स हो जाता है। या फिर गाड़ियों का धुआं है सर, वो उसमें एयर में जाके मिक्स हो जाता है और सर हम वही एयर इनहेल करते हैं, जिससे हम सर बीमार हो जाते हैं। और सर एयर पोल्यूशन के कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग है सर। ग्लोबल वार्मिंग एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े कॉजेज है सर। एयर पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग सर अब गर्मियों में हुई थी सर, जैसे कि गर्मियों में अब ज़्यादा गर्मी हो गई थी सर, और ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी सर। ज़्यादा गर्मी सर, अब गर्मियों में ज़्यादा पेड़ पौधे काटते थे सर, जिससे कि ज़्यादा गर्मी होगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। और हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखने के लिए सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए सर। थैंक यू सर। सर वाटर पोल्यूशन जो हमारे घर का वेस्ट मटीरियल होता है ना सर, वो एक जगह इकट्ठा होके सर वो फिर हम उसी पानी को पीते हैं सर। वही पानी फिर फसलों में जाता है सर, वो पानी फसलों में जाके सर वो फसलें हमारे घर पे आती हैं, हम खाते हैं सर, बीमार होते हैं सर। फिर हमें सर पानी को गंदा नहीं करना चाहिए सर। थैंक यू सर। कैसे रे? My name is Sonu. I study in 8th class. This is my project name is stethoscope. सर ये ट्यूब पे सर ये एयर पीस है सर, ये एयर ट्यूब है सर, ये ट्यूब है सर, ये चेस्ट पीस है सर, ये डायफ्राम है सर। ये इसका वेस्ट मटेरियल से काम हुआ है सर, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं सर। सर ये वर्किंग है सर, आप इस्तेमाल करके देखिए। एक्सप्लेन करें सर? हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ दीपेश, आई इन क्लास 8 एंड माय टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो सबसे पहले हमने बताया है जुडिशरी क्या होता है सर। जो दो सिटीज़न के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करना। और जैसे कोई भी आम आदमी कोर्ट में केस लड़ रहा है, वो उसने कोई भी जुर्म नहीं कर रखा है, उसको न्याय दिलाना, उसको अपनी जगह न्याय दिलाना, उसे कहते हैं जुडिशरी। तो सेकंड फेज में बताया गया है कि जो भी योर वॉइस मैटर्स की आपकी आवाज़ मायने रखती है। जैसे कोई भी नेता या पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है, आम आदमी उसको वो वोट देती है और जिता भी देती है, तो नेता का भी हक या फिर अधिकार बनता है कि नेता वो आम आदमी की सभी रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर जो भी उसने वादे किए। जो थर्ड फेज में बताया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें स्पीच देने का हक है, पढ़ने का हक है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हमें सभी चीज़ें समझने का, राइट टू एक्सप्रेस करने का भी हक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। फिर 10 दिसंबर को ह्यूमन इंटरनेशनल राइट्स डे मनाया जाता है। फिर फर्स्ट राइट है इक्वल एक्सेस, बोर्न फ्री, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सिक्योरिटी एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड इक्वल बिफोर द लॉ। थैंक यू सर। My name is Vinika. I study in 8th class. Today I will be about nuclear power plants. So nuclear power plants से जैसे कि हम परमाणु ऊर्जा से जो है हम बिजली बनाते हैं, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। सर इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है यूरेनियम। तो सर यूरेनियम का क्या यूज़ होता है कि यूरेनियम से ऊर्जा पैदा की जाती है, और सर जैसे और जो संसाधन है उनका यूज़ करके, मतलब जो जितनी ऊर्जा बनाई जाती है सर, यूरेनियम उससे ज़्यादा ऊर्जा बना सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 1 किलो कोयला है वो 2 मेगावाट जो बिजली है वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर 1 किलो यूरेनियम है तो वो 2.5 करोड़ मेगावाट हीट प्रोड्यूस करेगा। सर इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्योरीफाई करना होता है यूरेनियम को सर, उसको कूलिंग टैंक में डाल के, और फिर सर जिसमें चैन रिएक्शन होगा, तो उसके बाद उसका जो एटम है वो अपने आप जो है भड़केगा, भड़कने के बाद हीट प्रोड्यूस होगी, और जहाँ वो हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पे वाटर होएगा, वाटर से सर भाप बनेगी, स्टीम पाइप से जनरेटर में जाएगा, जनरेटर में लगा होता है टर्बाइन, तो सर वो भाप के प्रेशर से घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ये जितना यूजफुल है उतना ही हार्मफुल भी है। जैसे कि
जैसे 1986 में धमाका हुआ था यूक्रेन में सर, वहाँ पे मतलब ज़्यादा जहाँ पे ये होता है, जो इसमें काम करते हैं वो मरेंगे, लेकिन जहाँ पे ये है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जैसे कि वहाँ की मिट्टी जो है कई सालों तक उपजाऊ नहीं होगी। तो सर इसका यूज़ भी और हार्मफुल भी, जैसे कि अब काफ़ी देश इसको बंद करते हैं, लेकिन काफ़ी देश चाहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर। वातावरण नागासाकी में अरे यूक्रेन में My project is wastewater treatment. Wastewater treatment is the process of removing contaminants from water so that it can be returned to the environment or reused. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मीन्स व्यर्थ पानी का उपयोग। जैसे सर इंडस्ट्रीज में से वेस्ट वाटर निकलता है, उसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसके अंदर से वेस्ट वाटर निकलता है। हमारे घरों में से वो बाथिंग के लिए, अदर यूजेस के लिए वो जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, उसको हम वो नेचुरल प्रोसेस से प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे सर ये एक प्रोसेस है तो जिससे ये वेस्ट वाटर क्लीन होगा, प्योरीफाई होके फिर आगे गार्डन पार्क्स वगैरह में यूज होगा। Sir, my name is Dipanshu. I am in 7th class. My topic is circulatory system. सर जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता रहता है और हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक होता है। इसके बिना कोई भी आदमी न जीवित रह पाएगा ना वो ब्रीथिंग कर पाएगा। सर जो हमारे हार्ट होता है ये मसल से मिलकर बना होता है और सर ये कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता रहता है, धड़कता रहता है कुछ इस तरीके से।